I will come return back. Sure, sir. Yes. Just a minute. Give it to me 1 minute. Yes. Right. So, friends, good afternoon to everyone. I'm happy to see sitting in Lucknow on the way of the Prayagraj Kumbh. But in between, I had an opportunity to meet all of you. मैं बहुत खुश हूँ. और जैसे ही जब BAU से कोई भी कॉल आता है तो मैं without any hesitation first I say yes. And that's the reason what has happened is they scheduled my class early in the morning when I had another class in IIM Lucknow. So that was the issue I could not take in the morning session. I'm sorry for the change. Lekin when I'm seeing all of you sitting over there and listening me, I'm very happy because Agriculture University sir is मेरा दूसरा घर है. I myself is an agriculture graduate from Pantnagar, and whenever I see anyone from the agriculture, I feel बहुत अंदर से खुश हो जाता हूँ. It is like जो it leaks that I am back at home. And so whenever Sohane sir told me, I said, sir, I will do it. And I will certainly do it. ना करने का तो सवाल ही नहीं है. I would have loved to come over there. But I told sir that I am out of a station and मुझे थोड़ा I am लखनऊ में एक सेशन चल रहा है तो उसके लिए कोर्स है जिसके लिए I am over here. तो मैं नहीं आ पाऊंगा. Otherwise I would have personally come and met you. So once again, grateful to BAU and then grateful to Sohane sir and grateful to all of you so that you are here. So what I'm going to do here is this. One thing I will tell you that just be with me for the 60 minutes. And in 60 minutes, I will change all of you for better. Now I tell you this, what is going to happen? Going to happen is this, we are in the world of artificial intelligence. We are in the world of machine learning, and we have become so mechanical and so technical. But I will give you some of the tips where you will become a better human being. And after attending this training program, when you go out of BAU to your own place, your own all colleagues will tell you, क्या बात है, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं आप. That will tell you people to you that I understand. And for that, you don't have to do anything. Just be with me with the 60 minutes. And you will be a professional with development in the age of artificial intelligence, in the age of machine learning. But you must understand, technology will change, but human beings will remain same. I will remain same. Sohane sir will remain same. You all will remain same. Technology may keep on changing. So what we can do to just upgrade ourselves and the change ourselves so that everyone in this country tells you, all of you, that you are a great professional. And I would like to work with you. हम क्या करेंगे जिसके आपके सारे कलीग आके आपसे कहेंगे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं. आपके सारे स्टूडेंट आपसे आके कहेंगे कि मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूं. और आपके सारे पड़ोसी आपके साथ आके कहेंगे कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं. और वो गुण कहां से आएगा कि सब कोई आपको ही चाहेगा. यही इस 60 मिनट्स की दिस है. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? वी आर गोइंग टू डू दिस वेरी सिंपल वे. And you will be happy to see this, that no, it's not going to be a big exercise for us. It will be a very simple way to do this over here. And that's why my topic today is a professional communication. I will share my slides with you, and then after we can take it forward over here to you. Just allow me to share my slides with you. So now when you see the slide, what does it say is basically, want to be different, be a professional communicator. And this is in the world of AI, and this is in the world of machine learning. I don't know where the world is going to go over there as. But you really want to be different. Everybody wants to be different.
Everybody wants to be so loyal, so close that everybody should accept, should love everyone. I want this, just be with me, that you will be. But मैं जब ये बोल रहा हूं आपको कि you want to be different, be a professional communicator, पहला सवाल आपकी जवाब में, पहला सवाल आपके जेहन में आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूं, इज इट पॉसिबल? आप मुझे कहेंगे सर झुट्टो झुट्टो मत बताओ, सच्ची सच्ची आप मुझे बताइए, इट इज पॉसिबल दैट आई विल बी चेंज्ड in just 60 minutes, that everybody will start liking me? You will ask this question, is it possible? You will say कि सर मैं तो अपने पति को या पत्नी को पिछले 25 साल से चेंज करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ 60 मिनट में वो चेंज हो जाएंगे आप? यही तो पावर है, यही तो पावर है नीरज की और इस क्लास की और सुहाने सर की और बीओ की ट्रेनिंग की, कि आपको वो 60 मिनट में वो चेंज करके दिखाएगा. द आंसर इज यस, यू कैन. इट इज पॉसिबल. यस, इट इज पॉसिबल. I tell you this. And then what will be the next question you will be asking from me is that you try to understand what would be the next question. Next question to will be asking, it is so easy. अभी क्वेश्चन कहा कि इतना आसान है कि कोई आदमी चेंज हो जाएगा इस 60 मिनट में, इतना इतना सो आसान है. मैं आप कह रहा हूं, मेरी बात पे विश्वास कीजिए ना. हाँ भाई, यू कैन चेंज. हु टोल्ड यू कैन नॉट चेंज ऑन दिस? दिस इज व्हाट इज, यू कैन सर्टेनली चेंज ऑन दिस. यू कैन चेंज. बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू वुड बी, जब इतना आसान है तो मुझे तरीका बता दो, तो मैं भी चेंज हो जाता हूं. तो अब लीजिए, अब आपको तरीका बताते हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये तरीका कठिन नहीं है. दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट प्रपोजिशन. This is easy thing to do, and what I am going to share with you is, I'm just going to share 5 mantras in front of you, and if you are able to follow those 5 mantras, make it sure you are the changed person without any doubt. And then you will realize that what I had promised you, that I will change you after 60 minutes of 70 minutes of this session, you will be changed this. Just remember 5 mantras, 5 मंत्र हैं. वो कौन कौन से मंत्र हैं, मैं आपको आज ही से शुरुआत करता हूं. पहला मंत्र है जिसको हम लोग कहते हैं टोन. अगर मैं अभी आपसे क्लास में होता तो कहता आप जरा बोलिए ना, टोन का मतलब क्या होता है? What comes in your mind when I speak the word tone? आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप लोगों में से कुछ यही बोलते, सर वॉइस. That's what. Sir, pitch, so volume. These are the few words which is coming in your mind. I know it. लेकिन ये उससे भी ज्यादा है. ये एक होता है ना, जैसे हम लोग बात करते रहते हैं और कहते हैं, देखिए आपकी बात तो सही है लेकिन आपका टोन अच्छा नहीं लग रहा. So what is this tone edge? So just give me permission. I'm introducing as a definition for tone is very simple definition. The tone is the first impression which you create and which you give to your audience, to your client, to your peers, to your subordinate, to your relatives. This is the first impression which you give it to this. And so now, अब आप कहेंगे कि इस टोन की विशेषता से, ये टोन की विशेषता है, और टोन 2 तरह के होते हैं. टोन 2 तरह के होते हैं. एक पहला टोन होता है एक्सटर्नल और दूसरा टोन होता है इंटरनल. आप कहेंगे ये पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, ये मतलब क्या है, टोन क्या होता है? तो बस आप लोग एक काम कीजिए, आप अपने आप को थोड़े समय के लिए अपने ग्रेजुएशन के जमाने में अपने कॉलेज में ले चलिए अपने आप को. जब हम कॉलेज में बैठे रहते थे तो क्या करते थे, आपको बताते हैं. जब नया नया क्लास चल रहा है, कोई टीचर नया नया क्लास में टीचर आ रहा है, तो जब हम उसको देखते थे तो बगल वाले को कहते थे, अरे साला ये तो खड़ूस नजर आ रहा है, अभी उसने पढ़ाया नहीं है, अभी उसने पढ़ाया भी नहीं है, उसने अपनी जबान भी नहीं खोली है, उसने अपने सब्जेक्ट का परिचय भी नहीं दिया है. He has not introduced himself, he has not spoken a single word, and you have already concluded that he is खड़ूस. और एक और याद रहते हैं कि अभी तो मैं वहां नहीं हूं, नहीं तो मैं, आप मेरे बाद में, इस जैसे ही मैं ये बोलूंगा उसके बाद आप मेरी तरफ से मेरे पूरे हाफ सेंटेंस को आप पूरा करेंगे वहां से बैठे बैठे. मैं बोलता हूं ना, एक कहावत है, पहली ही नजर में
हाँ, प्यार हो गया। अरे वाह, क्या बात है। दैट इज व्हाट रियली वांटेड। आपने यही दिल में सोचा और मेरे पास वो खबर आ गई और मैं समझ गया कि आपने वही सोचा है। दैट्स वेरी गुड टू डू दिस। पहली नजर में प्यार कैसे हो सकता है? लव एट, यस, फर्स्ट साइट। यू आर राइट। हाउ डज इट हैपन? when we have not talked to each other. We have just looked on each other and we have fallen for each other. How can it be possible? Just think of, but it happens. It happens and it happens. How does it happen? Now I will tell you this. It happens because of your look, because the way you present, because the way you carry yourself, the way you dress up, the way you take yourself to someone else. And if you present yourself in a way the people expect, I understand, people will fall for you. आपको लोग याद करेंगे। मैं आपको बताता हूं, अभी तो यहाँ के अभी 3 बजने वाले हैं। मान लीजिए कि आज शाम को सुहाने सर ने अपने घर पे एक पार्टी दी है। वो तो जानते हैं वो पार्टी दे भी सकते हैं, क्योंकि मैं यहां हूं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर सुहाने सर ने पार्टी दी है और शाम को बोले हैं कि आज मेरे घर पे पार्टी है, इनकी बिटिया बड़ी अच्छी है, तो अगर वो आई हुई है और उसकी खुशी में पार्टी दिया है उन्होंने, तो आप सब देखिएगा, पार्टी के नाम पे आप सबों का ये ड्रेस बदल जाएगा। शाम को अगर किसी के घर की शादी में जाना है तो आप सबको ये ड्रेस बदल जाएगा। आज जिस ड्रेस में आप अभी यहां बैठी हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप लोग, वो सारा ड्रेस बदल जाएगा। वो क्यों बदलेगा? वो क्यों बदलता है? क्योंकि एवरी ओकेजन हैज गॉट इट्स डेकोरम। Every occasion expects you to behave in a certain way. Every occasion demands that you present yourself to the occasion in a given way. And if you are presenting yourself to the occasion, you make it sure the person in front of you will accept you. मुझे एक कहानी याद आ रही है, फिर मैं वो कहानी कहता हूँ। बड़ी अच्छी कहानी है। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, साथ साथ मैं कहानी भी आपसे शेयर करता हूँ। कहानी ये है कि मैं यहाँ एक्साइम भुवनेश्वर में तो बहुत पहले ज्वाइन किया, उसके पहले आईएफएम भोपाल में था। भुवनेश्वर में मैं ज्वाइन किया तो 2013-14 की एक बात है। 2013-14 की बात है। एक लड़का था, वो केरला का था। his name was Anup Nair. He was commerce graduate, and then after he has 2 years of work at State Bank of India, and then he cleared his chartered accountant, and after that he had joined us for an MBA program. तो वो बहुत इंटरेस्टेड था सारे फाइनेंस के सब्जेक्ट में, और उसको फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ा, और उसने वहां पे एक इंटर्नशिप भी HSBC बैंक में, एक इंटरनेशनल बैंक में कर लिया। उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई तुम फाइनल प्लेसमेंट में कहां जाना चाहोगे? तो कहता है मैं फाइनल प्लेसमेंट में जेपी मॉर्गन चेज जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था में जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो इन जेपी मॉर्गन चेज। एंड यू वोंट बिलीव ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। For 2 years he was continuously preparing. So what has happened in the month of December, when the company just starts coming to XIM campus, this was the number 1 company for the finance profile. And this company was coming to us on 18th of December 2015. बट एक दिन पहले क्या हुआ कि जो मार्केटिंग की नंबर 1 कंपनी थी कोका कोला, वो आ गई। तो इस बंदे ने ये सोचा कि अरे यार, हमारा ड्रीम कंपनी तो जेपी मॉर्गन चेज है, लेकिन हम इस कंपनी कोका कोला में बैठ जाएंगे ना, तो मुझे इंटरनेशनल एचआर का, जो एचआर मैनेजर से उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें इंटरनेशनल जीडी इंटरव्यू प्रोसेस का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। इसने ये सोचा, जो काफी जायज है। एंड व्हाट डिड इट हैपन इज दिस, then he applied for the first day company, which used to be for the marketing Coca-Cola. He applied to Coke. As I shared with you, he was the not topper, but he was among top 10. He was among top 10. So what has happened? He was intelligent, top 10. His CV got shortlisted for the Coke interview. लेकिन कोक में क्या हुआ था, टोटल 180 स्टूडेंट्स में से 120 लोगों ने अप्लाई कर दिया था। अब 120 लोग जब अप्लाई करेंगे तो कितना भी स्क्रीन आउट एचआर करेगा, तो इंटरव्यू प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसका इंटरव्यू होते होते रात के 2 बज गए, और नेक्स्ट डे जेपी मॉर्गन चेज आने वाली है।
ये 18 तारीख की बात है, 19 तारीख को जेपी मॉर्गन चेज आने वाली है। ये 18 और इसको सुबह के 3 बज गए, यानी कि तारीख 19 हो गए हैं। दिन बदल गया है, तारीख बदल गए हैं, लेकिन इसका कोक का इंटरव्यू खत्म हो रहा है। और जैसे ही इसका कोक का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसने बोला, अरे आई शुड गो, आई शुड स्लीप, अदरवाइज टुमारो आई हैव एन इंटरव्यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर इंटरव्यू, आई डोंट स्लीप ओवर देयर। So what he did, he went and he slept. When he woke up, then he looks on watch and he says that, oh my God, 7:30, I have to report to the placement office at 8 o'clock in the morning. And it was already 7:30. So what he did, he just went to his bathroom, अपना जल्दी जल्दी नो बाथरूम में गया, नहाया, और यूजुअली जो हॉस्टल में होता है, बगल वाले रूम से अपना कोट लिया, फिर बगल वाले रूम किसी से अपना टाई लिया, अपना खट से पैंट शर्ट पहना और चला गया वहां। अपना सीवी तैयार किया हुआ ही था, सीवी लेके सीधे वो प्लेसमेंट ऑफिस में चला गया। सीवी लेके वो सीधे प्लेसमेंट ऑफिस में चला गया। अब देखिएगा व्हाट हैज हैपेंड इज, जैसे ही वो सीवी लेके प्लेसमेंट ऑफिस में चला गया, देन व्हाट हैज हैपेंड इज दिस, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। और प्रोसेस शुरू हो गया तो उसका जीडी हुआ, जीडी में उसका सिलेक्शन हो ही गया। अब उसके इंटरव्यू की बारी आई। इस बार जैसे आपको पहली बार बताया था कि कोक में 120 बच्चे थे, इसमें सिर्फ 60 बच्चे थे, क्योंकि फाइनेंस में उतने लोग एक्सपर्टाइज करना नहीं चाहते थे, तो सिर्फ इनके पास 60 बच्चे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि सारी प्रक्रिया को, सारे प्रोसेस की खत्म होने के बाद by 4 o'clock he turned for the interview came, and this person goes for the interview fully prepared. He goes for the interview. Then what happens, suddenly it was not even 5 to 7 minutes, he comes back. Everybody was shocked. ये तो 5-7 मिनट में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। But then, because he was Anup Nair, he was such an intelligent person, his CV was so strong that everybody thought that इसका तो होना ही था। तो HR वालों ने सोचा होगा अपना समय क्यों बर्बाद करें, why to waste time in interviewing him, this person, so it's better to ask him to join, and we will not waste time, because his CV was so strong. A commerce graduate, 2 years work experience in a State Bank of India, then a chartered accountant, and then summer internship in HSBC Bank. Which finance organization will say no to this person? So we thought, iska to hona hi tha. But that guy was telling, nahi, it seems there is something wrong. Kuch garod hua hai. There is something wrong which has happened place. Then everybody was silent. Nobody could say to this. By 6 o'clock, result was out. And actually, his name was not there. They had given 4 candidates list, successful list, but Anup was not there. The moment Anup saw the list, he started crying like anything. If you allow me sitting in Bihar to hear me, वो रोने नहीं लगा, वो भोकार पार के रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, because उसके 2 साल के सपने चकनाचूर हो गए. The organization where he has dreamed for he will work, that organization did not select. His all dreams got shattered and he was totally broken. He was crying like anything. We usually don't ask from the company that why did not you take someone, or why did you take someone. So what we do is that usually we go and ask the company whether your process was okay or not, the children has taken care of your food and all other arrangements or not. These are the basic questions we ask. We don't ask why did not you select X, why did not you select Y. We don't ask. So what has happened is my senior colleague, Dr. Savita Mohanty, she is an XLRI graduate and she herself was senior HR of Wipro. She is now placement coordinator. She was that point of time. She went and she met the HR manager, HR team of JP Morgan Chase. And then said, how did the process go? They said, very good. Did the students take care of yours? Yes, they are very good. Your students are very good. They took care of everything of us. And then they asked, how did you find a student? No, your students are very good. That is why we were supposed to take 3, but we have taken 4. Then she could not stop herself, और उनसे रुका नहीं गया. And then she said, how was Anup? Then suddenly answer comes, Anup is the genius. Then madam asked,
If you say he's a genius, then his name is why not in the list? No, 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 no. He's a genius, but he took JP Morgan Chase for granted. He did not take interview process of JP Morgan Chase seriously. Madam said he has been preparing for last 2 years, and you say that he has not taken seriously. No, yes, he did not. He thought he will be taken, and he did not take seriously. A person who is not taking interview seriously, which is a door to entry in the organization, when he's not taking interview seriously, entry को seriously नहीं ले रहा है, then what will happen when he is selected? तब तो वो he will do anything which he wants. Ma'am said it not, and then she could not stop herself. And you say, she asked, you tell me, what did he do based on which you are telling that he did not take it seriously? Then the HR, this, listen guys, listen, आप सुनिए मेरी बातों को तो आपको लगेगा कि क्या मजाक है. The HR lady, which was in her 50s, she said she had not done the proper saving. That guy, as I told you just now, he slept 3 o'clock in the morning. Then after he went to sleep, and then after he woke up, it was already late. So he took bath, he did everything, but he just forgot to do the bathing. So what I am saying this to you is that if you are, your cleanliness, the way you present yourself, your external tone cannot give you a job, but it can certainly tell you no to this. So you will not get job because of you are clean, but you will get rejected if you are not clean. So external tone is so much powerful. And that's why we say this, pehli hi nazar mein, because anything which happens when you meet anyone or someone meets you, it is the first 13 seconds where you decide about how the person is. You forms an opinion. This opinion can later on change based on our interaction. When both of us interact, our opinion can change. But the first first opinion will be formed. And the first opinion, if the first opinion is not positive, you cannot build that relationship. There would always be a darar between you and me. And that's why I tell you this, that tone is very important. And because the first impression is so powerful that हम बोलते हैं ना, love at first sight, that happens. So external tone. Go to the next one. We call it as an internal tone. And see, this internal tone is nothing. When you open and start interacting with the people, you open your mouth and now you open up. And then this is the time when people will start forming opinion and start deciding that, yes, the opinion which I have made was correct or not. Dear friends, my dear friends, I tell you this, God has given you the one power of a smile. It's only the human being who can smile. And sometimes we are so miser, इतने कंजूस होते हैं एक मुस्कान देने में, that we lose an opportunity to be popular, be a professional, just because you don't smile. And that's the reason people called that teacher as a kharoos teacher, a smile dear. A smile is a one thing which gives an impression to the outside world that you are welcoming someone, you are approachable, anybody can do the business with you, anybody can do the research with you, anybody can do extension with you, and anybody can be with you in the field because you are a jovial person, you smile. And this power only you have got, any other this thing has come. आप वहां बैठ के, अगर आप आज के जमाने में, इस एआई के जमाने में योगा को भी मानते हैं कि हम योगा से कुछ कर सकते हैं, तो आपको तो मालूम है कि रोने से आधे मसल्स का एक्सरसाइज करता है, लेकिन आप एक बार स्माइल करके दे तो देखें सारे मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है. जितना मुस्कुराएंगे ना, बुढ़ापा उतने ही देरी से आएगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. देख रहे हैं मुझे, मैं तो बस मुस्कुरा के ही जवान बैठा हूं. That's what it is. So the point I was telling to you is that मुस्कुराइए.
That is the thing which I want to tell you over here, Edge. Okay, you have to smile because the smile is after the first external tone, the person in front of you is going to decide on this factor, that how much approachable you are, how much friendlier you are, how much easier with you to work with you are, and that will be decided when you open your mouth. So the smile is something which is very important. Just look on this girl. I didn't know this girl, but just look on her smile. And I am seeing sitting over there in a classroom. By this time, you're not looking at me, you're looking at the girl which is there on a screen. इसकी मुस्कुराहट ही ऐसी है. What I said this to you is that मुस्कुराहट किसी का दिल आराम से जीत सकती है. तो जब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं एंड यू वांट दैट एवरीबडी शुड लाइक यू, यू वांट दैट आई एम ए प्रोफेशनल व्हिच एवरीबडी शुड वर्क विथ मी, आई एम ए प्रोफेशनल व्हिच एवरी सबऑर्डिनेट एंड peer should love me, everybody should give me the due respect which I deserve, and nobody should hate me, then that's the another option which you say, that your smile is so important to understand. सो द पॉइंट इज नाउ, आप अगर आप वहां बैठे हैं तो मुझे इजाजत देंगे, अगर सुहाने सर है तो सुहाने सर की इजाजत से मैं आपके लिए एक शेर कह देता हूं. गालिब की शेर है, मुस्कान बनाए रखो तो सब साथ है गालिब, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती. द टीयर्स who has got origin in the eyes, the tears, the eyes are the mother of those tears. And if you are crying, if you are not smiling, these eyes will not hold you on, and your tears will roll down through your cheeks. But आज मेरी बात आप मानिए और एक एक एक्सरसाइज करके देखिएगा. कभी जब आप कभी दुखी से रोते हैं ना, कितना भी छुपा लें आंसू टपक पड़ेंगे, लेकिन जब आप खुशी से आपके आंखों में आंसू आते हैं ना, तो थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए ना, आंखें सोख लेंगी उसको. ये क्यों? क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं. दैट्स व्हाई आई टेल यू दिस, smile. And that's the thing which I said you is the first factor, first mantra which will make you a hero, where everybody will start liking you to do this over their age. मैं आज लखनऊ में बैठा हूं, इसीलिए आपको लखनऊ की बात कह रहे हैं. कहीं भी लखनऊ में आइए तो आपको लिखा मिलेगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में. वाइट, ये स्पेशल आपके लिए मेरी तरफ से लखनऊ से है. मैं यहां से रेवड़ी तो नहीं भेज सकता, मैं यहां से टुंडे की कबाब तो नहीं भेज सकता, लेकिन ये मैसेज आपके लिए लखनऊ से, वहां पर सबौर में आपके लिए मेरी तरफ से है. मुस्कुराइए तो, please smile. And that was the first mantra which I wanted to tell you. The second mantra is courtesy. Second mantra is courtesy, which is very important to understand. Courtesy. Give respect to everyone. Every human being needs respect. Every human being needs recognition. Every human being wants that people should respect his position. चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हो, चाहे वो सबसे बड़ा हो, हर इंसान इंसान होता है, और हर इंसानों में यही चाहत होती है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसके एग्जिस्टेंस को माने. You really need to be courteous. Courtesy is such an important thing. And मुझे मालूम है कि आप सबको courtesy देने आता है. अभी अगर यहाँ सुहाने सर बैठे, अभी वहां कुलपति महोदय आ जाएं या राज्यपाल महोदय आ जाएं, तो सबको इतने बड़े बड़े शब्द बोलना शुरू कर देंगे. हिज एक्सीलेंसी, हर एक्सीलेंसी, दे आर द ग्रेट, दीज आर द पीपल, रेवरेंड, ऑल ऑफ द थिंग्स यू विल टेल. सो यू नो हाउ टू गिव द रेस्पेक्ट टू अनदर्स. दिल से दे या ना दे, लेकिन आप देते तो हैं, आप देते हैं. सो यू नो हाउ टू बी कर्टियस. अभी अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो बाबा के पास जाए, तो श्री कहता है श्री बाबा को, श्री श्री 1008 बाबा की जय. वो 1008 क्यों हो गए भाई? 1006 पे भी तो रुक सकते थे, लेकिन आपने तो रुकने नहीं दिया, 1008 बना दिया उन्हें. आपने इतने ऊंचाई पे उनको चढ़ा दिया, उन्हें पूरी तरह से इज्जत दी, पूरा रिकॉग्निशन दिया, पूरा इज्जत दी. तो मैं कहता हूं, जब आप इज्जत देने के काबिल हैं तो दूसरों को भी मत दीजिए ना, सबको इज्जत दीजिए. इज्जत देने से इतना अच्छा रहता है कि आप
हारी हुई बाजी जीत जाते हैं, बात से आप बिगड़ी हुई बातें बना लेते हैं, जस्ट बिकॉज द वर्ड्स विच यू यूज कटसी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। जो वर्ड्स का क्या खेला होता है मैं आपको बताता हूं। मैं वहीं के, आपके बगल में जगह है एक मुजफ्फरपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो मैं मुजफ्फरपुर से पंतनगर आया करता था। चलिए कहानी कह देता हूं। सो कहानी कह रहा हूं कि जब मैं मुजफ्फरपुर से पंतनगर आया करता था पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर, तो जब सेमेस्टर ब्रेक हुआ करता था, तो सेमेस्टर ब्रेक हो जाने के कारण हम अपना घर आ जाते थे, और घर के बाद 1 महीने के बाद जब घर जाते थे, तो माता पिता के आंखों में थोड़ा सा वो आंसू छलक जाता था, और बेचारे नो भरे दिल से कहते थे, बेटा जब पहुंच जाना ना पंतनगर, तो एक चिट्ठी लिख देना। मैं भी कह देता था, हाँ लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं पंतनगर पहुंचता था, तो अपने दोस्तों के बीच इतना घुल मिल जाता था कि मैं भूल जाता था कि माता पिता को भी क्यों करें। मुझे समझ में नहीं आता इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैं उसको तब तक नहीं समझा जब तक मैं खुद पिता नहीं बन गया। जब पिता बन गया तो समझ में आया मेरे माता पिता मुझे क्यों कहते थे कि बेटा एक चिट्ठी तो लिख देना। लेकिन फिर भी उम्र है, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ा हूं, एग्रीकल्चर बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, और आप लोगों से, आप हम तो उम्र में कम है, और होपफुली वहां पे सुहाने सर सुन नहीं रहे हैं, तो एक और बात बताता हूं। एक बड़ी खराब चीज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आप इस क्लास के बाद से ये चुटकुला किसी को मत बताइएगा। ये खराब चीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी चीज है कि जहां जो प्लानर है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लानर, खासकर पंतनगर के, जहां उन्होंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बनाया है ना, वहां पता नहीं क्यों वहां कॉलेज ऑफ होम साइंस भी बना दिया है। अब सोचिए, 18 साल का लड़का जब अपने घर से कॉलेज जा रहा है, और वहां हॉस्टल में पहुंचता है, और हॉस्टल में उसके कॉलेज के बगल में और उसके हॉस्टल के बगल में गर्ल्स हॉस्टल जहां होम साइंस के बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चा घर पे चिट्ठी लिखना उसको याद रहेगा? सोचिए आप ही लोग, वो याद रहेगा उसको? आप लोग सिर तो हिला दीजिए, कम से कम याद आना। हाँ, ये हुई ना बात, किसी ने सिर हिलाया तो याद नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो जब आपको वो याद नहीं रहेगा, तो मैं भूल जाता था। फिर क्या हुआ, अचानक 5-6 दिन बाद मार्केट गया, देखा अरे सामने तो पोस्ट ऑफिस है। तो मैं जल्दी से गया, और पोस्ट ऑफिस में, आप लोगों को कितने लोगों को मालूम है, पहले एक पोस्ट कार्ड हुआ करता था, 15 पैसे में पोस्ट कार्ड आता था। तो पोस्ट कार्ड लिया और खट से उस पर लिखा, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ ठीक से पहुंच गया हूँ, यहाँ कल से परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक ठाक से पहुंच गया हूँ। और जाके पोस्ट ऑफिस में, जाके पोस्ट बॉक्स में मैंने अपनी चिट्ठी डाल दिया। फिर वो पहुंच गया, वहां चला गया। देखिएगा कटसी की क्या बात है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि 1-1.5 महीने तक तो वो चला। उसके बाद मेरा पैसा खत्म। उस समय तो ना ऑनलाइन ट्रांसफर था, न एटीएम था, न कुछ था। अब पैसा आएगा तो कैसे आएगा? तो पैसा आएगा, अब ड्राफ्ट उधर से बन के आएगा। अब ड्राफ्ट उधर से बन के आएगा, तो उसके लिए तो अब चिट्ठी लिखनी है। तो अब इस बार सब दोस्ताना, सब होम साइंस कॉलेज भूल के, चूंकि पैसा मंगाना है, तो पोस्ट ऑफिस जाता था। और उस बार मैं पोस्ट कार्ड नहीं खरीदता था, उस बार मैं अंतरदेशीय पत्र खरीदता था, इनलैंड लेटर खरीदता था। और फिर इनलैंड लेटर लिख के उस पे आराम से, पूरे आराम से, प्यार से लिखता था। फिर उसके बाद जो अंतरदेशी के ऊपर, इनलैंड के ऊपर जो गम लगा रहता था, उस पे पानी लगा के चिपकाता था। फिर भी डर लगता था कहीं खुल न जाए, तो फिर 100% चिपका दिया मैंने, अच्छी तरह से उनको चिपका दिया वहां। और फिर पोस्ट बॉक्स में जाके ऐसे सीधे डाला नहीं, ध्यान से कान लगा के डालता था कि कहीं बीच में अटक ना जाए चिट्ठी। डाला, फिर खटखटा के दोनों तरफ से देखा कहीं चिट्ठी अटक तो नहीं गई, और फिर डाल के चला आया। उधर मुजफ्फरपुर में माता पिता परेशान, बेटे का 1 महीने से कोई पता नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं आई, कुछ खबर नहीं, क्या करें।
उनको बेटे के प्रति प्यार उमड़ रहा है। रोज देखते हैं खिड़की से कि पोस्टमैन आ रहा है लेकिन हमारे घर नहीं आ रहा है, पड़ोसी के घर जा रहा है लेकिन हमारे घर नहीं आ रहा है। एक दिन अचानक देखते हैं कि अरे पोस्टमैन मेरी घर की तरफ आ रहा है। माता जी दौड़ी 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 जाती है पोस्टमैन के पास और पोस्टमैन से पूछती हैं, अरे हमारी कोई चिट्ठी है क्या? पोस्टमैन कहता है, हाँ हाँ, आपके बेटे की चिट्ठी आई है ना। वो माता जी चिट्ठी लेती हैं और चिट्ठी लेके दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाती हैं, कहती हैं, अरे सुनिए, चिट्ठी आई है। माता पिताजी ने जैसे ही सुना कि बेटे की चिट्ठी आई है, उनके अंदर का प्यार उमड़ने लगा, पूरा दिल से प्यार उमड़ने लगा और वो वेट करने लगे कब माता जी आए। माता जी ने आके उनको चिट्ठी दिया, चिट्ठी देखा, वो अंतर्देशी पत्र है, बेटा के प्रति प्यार उमड़ रहा है और वो अंतर्देशी पत्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटा ने तो उसे ऐसा चिपकाया है कि वो खुल नहीं रहा है और उनका प्यार इमड़ते जा रहा है, प्यार बढ़ते जा रहा है। फिर अचानक वो इंलैंड खुलता है और वो चिट्ठी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस बार देखिएगा सर, जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो इस बार आदरणीय नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है परम पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श पढ़ा, अपने नीचे देखा, नीचे देखा तो बेटा उनका साष्टांग लटा हुआ है। उस वर्ड की इतने पावर थे, उनकी आंखों में पानी आ गया। परम पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। उन्होंने अपने चरणों को देखा, समझ गए कि अरे वाह। बाकी की चिट्ठी पढ़े बिना उन्होंने कह दिया, सुनती हैं, इस बार इसको 1000 रुपए नहीं 1200 रुपए भेज दीजिएगा। सो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्टर है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कुछ नहीं होता। मैं आपको ये फोटो देखिए, जरूर देखिए, सुष्मिता सेन को भी देखिए, लेकिन इसके पीछे की सीख आप जरूर सीख जाएंगी। तो मैं आपको और चीज कहूंगा। सबसे पहले तो अदब देखिए, दो चीज लेकिन मानिएगा। पहले मैं एक बात कह देता हूं, फिर उसके बाद मैं एक दूसरी बात भी बताऊंगा, इस अदब की बात बताऊंगा। सुष्मिता सेन जी से एक बार किसी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू में पूछा था, कोई प्रश्न पूछा, तो उसने उनसे एक प्रश्न पूछा कि वैसे आपका व्यक्तित्व क्या है, पर्सनल व्यक्तित्व क्या है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आप जर्नलिस्ट या किसी बाहर लोगों से मिलते हैं तो आपकी आवाज में बहुत ही ज्यादा आदर झलकता है। आपकी आवाज में एक डिफरेंट मिठास नजर आती है। आप ऐसा क्यों करती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? जो हर्ष को आप उचित सम्मान देती हैं, चाहे कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई हो। तो उन्होंने क्या कहा, एक बात आपको मालूम है, मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा, देखिए, इज्जत देना मेरा कर्तव्य है, और जब भी जर्नलिस्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसकी ये चाहत होती है कि वो मुझे प्रभोग करे, मुझे गुस्सा दिलाए। ही विल मेक मी एंग्री सो दैट आई विल स्पीक सम हार्श वर्ड एंड दैट विल बिकम द ब्रेकिंग न्यूज फॉर देम। They want to break me to create their breaking news, but I am not that, because I know after that what will happen is that they will only play my speech where I have lost my temper. They will not put the question there, and the world will evaluate me why I lost my temper, and the world will evaluate me on my words, not on the words of the journalist who asked the question. He will not, he will not ask it. So ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको आपके गुस्से के कारण लोग याद रखेंगे। लोग कहते हैं ना, गलती मैंने एक की, तुम आज तक लेके बैठे हो, कितने जमानों से मैं तेरे साथ हूं, मुझे भुला के बैठे हो, ये कहते हैं। आप भी कीजिए ना, आप आदर से किसी से बात करना देखिए ना, कटसी देना सीखिए ना, देखिए ना आप में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, गांवों के अगर किसी किराने की दुकान पे जाएंगे तो किराने की दुकान पे एक छोटा सा पोस्टर लगा रहता है, छोटा सा लगा रहता है, जहां लिखा रहता है महात्मा गांधी के फोटो के साथ, हर कस्टमर भगवान के समान है, ग्राहक भगवान तुल्य है। और महात्मा गांधी कह के गए थे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के कारण ही आप बैठने से हैं। हम तो उन्हीं के कारण बैठे हैं, और हम तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं।
हमारा, अगर हम अपने फार्मर्स के प्रति कटियस नहीं होंगे तो किसके प्रति होंगे? दीज आर द फार्मर्स हु आर द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस. इफ दे आर नॉट देयर, वी आर नॉट देयर. These are the farmers because of whom I'm getting food, I'm getting my salary, who I'm getting this. And just because they are poor, they are not rich, they are not educated, they are not resource person, we don't give them the due respect. Sorry, this is not the professionalism. Professionalism says this: at least respect the person who is the reason for your existence, जो आपके रहने का कारण है. आप कृषि वैज्ञानिक हैं और आप कृषक को अगर इज्जत नहीं देंगे तो फिर किसको इज्जत देंगे? अगर वो नहीं होता तो वो आप नहीं होते, और आज आप यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं होता. मैं आपको तो इज्जत दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आपके कारण मैं यहाँ बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं. यू आर द रीजन फॉर माई एग्जिस्टेंस हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. We should give respect. Must understand the courtesy is the second parameter after tone that we should do it. But वहां बैठी हैं, बहुत लोग वहां बैठे हैं, बहुत सर और मैडम. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी के प्रति कटियस होते हैं ना, तो कुछ ज्यादा ही कटियस हो जाते हैं. और आप लोगों को तो, you are experienced in working in a government system. If your boss calls and the vice chancellor comes, we do everything. Sir, sir, yes, sir, 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 yes, sir. We only come to know about the sir. But the point is, I will warn you with the two different types of the courtesy. The first courtesy is, which is equal to flattery, which is equal to buttering, which we call it. इतना भी कटियस मत हो जाइए कि वो फ्लैटरी बन जाए. इतना भी कटियस नहीं बनिए. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. और इतना भी कटियस मत बनिए कि आपको अपना सेल्फ एस्टीम में ही ना रह जाए, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ना रह जाए. तो मैं चूंकि लखनऊ में बैठा हूं तो आपसे एक शेर अर्ज करता हूं, आप जरा सुनिए. अदब से सर झुकाना, देखिएगा सुष्मिता सेन को, अदब से सर झुकाना तो मुनासिब है, सर इतना न झुकाओ कि टोपी गिर जाए. That's what the point is. Respect, courtesy is good, but not beyond that you understand. Second, which is related to another, the same thing is related to do this, is weakness. कोई आपको थप्पड़ मारता रहे और आप चुपचाप सुनते रहो बिकॉज नीरज सर ने बोला है कि हम कटियस हैं. दैट्स नॉट. गॉन आर डेज ऑफ महात्मा गांधी व्हेन somebody says to you that no, if someone slaps you in one cheek, give him the second cheek. I will not give it. By the foundation which I put my cheek is very costly, I will not going to give my cheek. That I don't going to do. I will never do that. आप उसे एक थप्पड़ मारता है, दो थप्पड़ मारिए. Because there is a limit of everything, and we call it, there is a boundary, there is a personal space. You never allow anyone to cross that personal space. The moment you allow someone to cross that personal space, it means you are weak and there is a weakness in you. So never compromise, never compare humility or courtesy versus weakness. These are the two different extremes. They are not same. They are the two different extremes. So you need not to be weak, but you should be courteous. मुझे मालूम है अगर मैं वहां होता तो आप मुझसे फिर एक दूसरा सवाल करते कि सर, हम तो लोगों के प्रति courteous रहते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ही रूड बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कुछ और होता है. कितने देर तक हम courteous रहें सर? कभी कभी काम कराने के लिए कुछ तो टाइट होना पड़ेगा, कुछ तो डिसकर्टियस होना पड़ेगा, कुछ तो गाली, कुछ तो ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे. मैं ये कहता हूं कि नहीं, डिसकर्टियस अगर वो नहीं है तो वो उसका चरित्र है. इट इज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यू आर कर्टियस, इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स. Let him be his characteristics, whatever he may be, but you be humble. Humble does not mean that you are a weakness. It never means that. But let the other people do that, and not other people, many people do that. That's where the issue is. You understand? कुछ लोगों की आदत होती है, आजकल तो बहुत लोगों की आदत होती है कि जहां पावर मिला, जहां कुर्सी मिली,
उनके ऊपर की कटसी चली गई। जब मैं आज इस तरफ बैठा हूं तो बहुत कटियस हूं, आज जब मैं उस तरफ चला जाऊंगा तो मैं भी बदल जाऊंगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो फिर मुझे जलील बद्र साहब की एक शायरी याद आती है कि मैं क्या कहूं आपको, अदब से सब झुकना तो मेरी फितरत में शामिल था, अदब से झुकना तो मेरी फितरत में शामिल था, मगर हम क्या झुके, लोग तो खुद को खुदा समझ बैठे। क्या करें? Let it be. Let them think that he has become God, but make it sure the God is only one and the top. No individual can be the God over there. You can only be God when your tone is good, you are humble, you are courteous. Then people will consider you, and people will consider you, you are the good man. Nobody can be God closer to do this. So now we have understood only two, basically two mantras. First was tone, second was the curtsy. Let me take to the next journey, which you can, the natural. Natural, this is very good to understand. Natural, what is the natural means? जो आप है वही रहिए ना, बनावटी बनने की क्या जरूरत है? When I can talk to in Hindi, I can talk to in mother language. Why I really need to show that I know English? All of you know English. Why do I want to show that I am at a good place? Not at all. Even if I start speaking English, after few minutes of my speaking, you will realize that this person is native of Bihar. Bihari hai, iski अंग्रेजी भी भोजपुरिया अंग्रेजी hai. You will be able to make out. But it happens. The moment people get seat, people get power. Or in our own academics is the worst. Suppose I go for a research seminar in or do a small research in America. I only go for 2-3 months. And when I come from the America, what I speak, no, I had been in America. When I was in America, I went to the Washington, and Washington is such a wonderful city. People walk when they're trying to do. हमारी अंग्रेजी ठुई अंग्रेजी हो जाती है। अगर हम मुझे बिहार की भाषा भी याद करने के लिए आप दें तो हम बैगन को टैगन बोलने लगते हैं। Because you move naturally. But the world expects you, the world expects you, the people expects you to be the natural. मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स कंपोनेंट यहाँ यूज करूंगा। Sigband, Madam Sigband is a great researcher on behavioral communication. And she did a research not for a small sample. So the sample size was almost more than the 5,000. And then she did for the different attributes of the human being. And then she concluded that if you are not natural, if you're trying to pose which you are not, people will consider you cheater. People will not believe on you. So, as I said you this in the very beginning of the session, I want to make you a professional who is liked by everyone. Why do you want to forget about your natural trait? सिंगबैंड मैम ने कहा है कि आप जब बोलते हैं, आप जब चलते हैं, तो ऐसे चलिए जैसे नदी की धारा चल रही हो। वो धारा आपकी आवाज में, चूंकि आप ही एक ऐसे हैं जिसको भगवान ने वॉल्यूम भी दिया है, पिच भी दिया है, इंटेंसिटी भी दिया है, और आपकी ही आवाज ऐसी है जिस आवाज में लचक हो सकती है, झुकाव हो सकती है, चढ़ाव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो सिर्फ आप ही हैं। तो फिर हम यूज क्यों नहीं करते हैं? करके देखिए तो वो नेचुरल। मैं आपको एक कहानी बताता हूं सर, बताता हूं। ये बड़ी अच्छी कहानी है। फिर मैं पंतनगर की कहानी कहूंगा आपको। पंतनगर वापस चलता हूं सर। मैं पंतनगर का एग्जाम दिया था और वहां मेरा एडमिशन हो गया था। तो हम लोग, आप लोग सबको मालूम होगा कि जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो यू हैव टू स्टैंड इन ए क्यू फॉर द counseling, and based on your merit you are given agriculture, veterinary, forestry, fisheries, home science, depending on the seats available and your eligibility criteria, you are given admission. तो हम लोग सब लाइन में लगे हुए थे। तो देखे कि what has happened. I was also there in line. So the people who had come from the Delhi, they were there also in a line. And the girls who had come from the Delhi and from the hill, who had studied in a convent education, English medium, they were also in the line. I was also there in the line.
So what I found is that these boys who had come from the Delhi Army School, Delhi Public School, Delhi Convent School, and these girls from the Nainital Convent School, Nainital Residential, all other these good, looking girls and these boys, they were talking in English. मैं बिहारी अकेला पहली बार बिहार से बाहर गया, मैं दोनों तरफ देख रहा हूं, बस हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये दोनों आपस में बात किए जा रहे हैं और हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और मेरे अंदर का लड़का जग गया, 18-19 साल का लड़का, 17-18 साल का लड़का, उसके अगल में एक लड़का एक अच्छी लड़की से बात कर रहा हो और ये बेचबाट में चुपचाप कैसे देखता रहेगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन मुझे तो अंग्रेजी बोलने आता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको हंसी आएगी। देखिए मैंने क्या किया। मैं क्या किया कि जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, अब जो लोग वहां पुराने होंगे और जिनको थोड़ा गांव के पढ़ाई की याद आएगी, तो हमारे जमाने में मैंने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की है। तो इन माय टाइम द इंग्लिश यूज्ड टू स्टार्ट इन क्लास 4th. So we started studying English in class 4th. Before that, there was no English. So then what has happened and how we were taught in English, speaking English is a far, but we used to be taught how to make translations in English. So what we did is this, we made translation. And how we used to make translation, मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रांसलेशन कैसे बनाता था, जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके हो उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे लगे हो उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। बस ऐसे ही हम ट्रांसलेशन बनाते थे, हमको तो बोलने की कभी जरूरत पड़ती नहीं थी, बोले कभी थे नहीं, तो ऐसे ही हम ट्रांसलेशन बना रहे थे। जब हम ऐसे ही ट्रांसलेशन बना रहे थे तो बनाई वही, फिर मैंने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो फिर मैंने क्या किया मालूम है, मैंने क्या किया कि खड़े खड़े वहां पे 4 सेंटेंस हिंदी के सोचे मैंने, और 4 सेंटेंस हिंदी के सोचे, फिर वहीं खड़ा हो गया से, और मन ही मन ट्रांसलेशन बना रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके लगे हों उसमें क्या होता है, ये कर रहा हूं। और खड़े खड़े उसको फिर याद भी कर लिया, रट लिया पूरा जोर से। और जब पूरा रट लिया तो फिर मैंने सारे लोग जो खड़े थे वहां पे, वो जो बच्चे सब इंग्लिश में अच्छे अच्छे लोग जो बात कर रहे थे, उनको मैं बीच में बोलता हूं स्टॉप। सारे लोग इधर उधर देखने लगे, मुझसे कहने लगे व्हाट 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 व्हाट, दे ऑल स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट। Then what I did, I just spoke first 4 line in English. Do. अब वो सर 4 लाइन चूंकि रटा हुआ था, तो मैं तो एक बार में बोल नहीं सकता था, जल्दी 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 4 लाइन इतनी जल्दी बोल दिया कि उसमें आधे लोग किसी को समझ भी नहीं आया कि क्या बोला मैं। Then they started saying, "Ori, what did you say? What did you say? Tell me again. Tell me again. What did you say?" They started asking again. मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला सर अब दोबारा ट्रांसलेशन हमसे नहीं बन सकता भाई, अब हमसे नहीं होगा दोबारा, इम्पोसिबल। तो शाम को शाम को एक बंदा हॉस्टल में, he was from Varanasi, and then he came to me and he pat on my back and then said and he has nothing to worry, you are from Bihar, no? I said yes, you are from Bihar, yes I am from Bihar. Then he said, वो जान गया क्या जरूरत है अपने नेचुरल को खोने की, क्या जरूरत है जो हम हैं उसको बताने के लिए। जब गल्फ से एनी टीम फ्रॉम द गल्फ कम्स, दे कम देयर ओन ड्रेस। Any person who comes from the France here speaks French. Why do you want to change something which you are not? If you are, do that. But if you are not, the world is not going to consider you things. World will consider you as a cheater. Never be the cheater. याद कीजिए, अभी तक हमने सिर्फ 3 ही मंत्र पढ़े हैं। वी have पढ़ा है टोन, वी पढ़ा है कटसी, वी ने पढ़ा है नेचुरल। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पॉजिटिव लैंग्वेज देखिए इस पे, और मैं आपके सामने 2 सेंटेंस कहता हूं, उसमें से बस आप हाथ उठा के, अगर आपको पहला वाला लगेगा तो एक हाथ उठाएंगे, और अगर अब दूसरा वाला अच्छा लगेगा तो आप दोनों हाथ उठा के मुझे सिर्फ बता देंगे कि आपको कौन सा अच्छा लगा। मैं समझ जाऊंगा कि मैं 2 सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, अगर 2 सेंटेंस बोलता हूं, पहले वाला अच्छा लगेगा तो एक हाथ उठाइएगा, और जो दूसरा वाला अच्छा लगेगा तो दोनों हाथ उठाइएगा। बस मेरे लिए थोड़ा सा देर एक उठाइएगा। पहला सेंटेंस है दैट आई एम नॉट इल, और दूसरा सेंटेंस है आई एम हेल्दी। कौन अच्छा है, आप दोनों हाथ उठा के और एक हाथ हाथ के बताइए मुझे, मैं यहां देख रहा हूं।
बताइए कौन सा अच्छा है? पहला या। अब देखिए आप सबों ने उठाया कि यू, दूसरा वाला आई एम हेल्दी। अब आप पूछेंगे आपको क्यों अच्छा लगा हेल्दी? आपका जवाब होगा सर वो पॉजिटिव है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच दोज रेज्ड योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच। सो वो आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो जैसे ये सिर्फ दो शब्दों में ही आपने, दो वाक्यों में ही आपने अंतर समझ लिया, तो आप समझिए जब आप वाक्य के बाद, नो सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस व्हेन यू टॉक एंड समटाइम्स यू यूज वर्ड विच हैज गॉट नेगेटिव कनोटेशन, आप आज के बाद से सिर्फ यही सीख के लेके जाइए कि हर शब्दों का एक भावार्थ होता है। एवरी वर्ड हैज गॉट ए कनोटेशन, either it is positive or neutral or negative connotation. So when I use the word I am not ill, ill has got negative connotation. But when I use the word I am healthy, healthy has got positive connotation. लेकिन जब हम बोलते रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला, जैसे आपको मेरे बोलने के कारण पता चल गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वैसे ही सामने वाले को पता चलता रहता है कि ये बंदा कैसा है, ये क्या बोल रहा है, और उसके दिल पे वही वही असर करता है। जब ये पूरी दुनिया कर रही है, entire world is now doing this, why will we not do this? When I say this, entire world is now doing this. मुझे बताइए ना, आप किसी पुराने ऑफिस में चले जाइए, चाहे आप ही के विश्वविद्यालय में, आप ही के ऑफिस में, जहां अगर कोई पुराना बॉक्स लगा होगा, एक बॉक्स लगा होगा, तो उस पर लिखा होगा कंप्लेन बॉक्स। लेकिन नई जगह पे जाएंगे ना, तो वो कंप्लेन बॉक्स बॉक्स वही है, लेकिन वो अब सजेशन बॉक्स हो गया है, कंप्लेन बॉक्स नहीं था। इट हैज बिकम द सजेशन बॉक्स। Why people changed? Why people replaced complaint with suggestion? Because suggestion looks very good. आप किसी सेकंड क्लास के डब्बे में सफर कीजिए। हमारे जमाने में हम लोग क्या करते थे, सेकंड क्लास के डब्बे में तो उस पे लिखा रहता था शिकायत की पुस्तिका गार्ड के पास उपलब्ध है। आज के जमाने में जाएंगे ना, तो वो उस पे अभी भी लिखा रहेगा सुझाव की पुस्तिका गार्ड के पास उपलब्ध है। द कंप्लेन बुक इज अवेलेबल विद द गार्ड एंड द सजेशन बुक इज अवेलेबल विद द गार्ड। बुक वही है 50 साल पहले पुरानी, जो पीली हो गई है, लेकिन द नेम हैज चेंज्ड एंड पीपल यूज इट लाइक एनीथिंग। दैट इज वो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। This is where your power, positive word power is doing this. आप स्टेशन पे जाएं, वहां आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कहीं के काउंटर पे लिखा होगा मे आई हेल्प यू। दिल्ली पुलिस विल राइट सदैव आपकी सेवा में तत्पर। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू गो टू पुलिस फॉर हेल्प, कैसा वो हेल्प देते हैं वो आपको भी मालूम है, लेकिन स्टिल दे से सदैव आपकी सेवा में तत्पर। May I help you? They say like this. Why do they say this? Because all these words help, seva, tatpar, ये सारे वर्ड विथ पॉजिटिव कनोटेशंस हैं, सारे वर्ड विथ पॉजिटिव कनोटेशंस हैं, और वो वही यूज करते हैं। जितने वर्ड सारे पॉजिटिव हैं, तो वो पॉजिटिव कनोटेशन के वर्ड आपको यूज करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, इस पॉजिटिव वर्ड्स में इतना पावर है। तो जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं। जब आप अपने ही ऑफिस में किसी के कमरे में बैठिए, 10 मिनट उसके कमरे में बैठ, ऐसे ही चाय पीने के लिए किसी के कमरे पे चले जाइए, और जब उस कमरे से जब वापस निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ये संस्था जहां मैं काम कर रहा हूँ सबसे खराब संस्था है, मुझे तो बदलना पड़ेगा। आपको लगेगा अरे यार यहाँ तो जिंदगी बेकार हो रही है। बट उसी ऑफिस में किसी और के कमरे पे चले जाइए, और जब उस कमरे पे जाके उससे बात करके देखेंगे ना, और वहां पे बात करके जब उससे देखेंगे, तो आपको नजर आएगा, वहां पे बात करके आपको लगेगा अरे वाह, ये हम तो बड़ी अच्छी जगह है,
यहाँ तो लोगों को बहुत अच्छा है और इस जगह तो इससे भी खराब खराब है, हम यहाँ बड़े अच्छे जगह पे बैठे हैं। आपको ये लगेगा ये क्यों हुआ। और दूसरी बार अगर फिर आपको किसी के पास जाना होगा तो आप पहले वाले के पास नहीं जाएंगे जो आपको निगेटिव एनर्जी देता था, आप दूसरे वाले के पास जाएंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है आप उसको जाके देखेंगे। मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव पावर का ये दिस इज द पावर ऑफ द पॉजिटिव लैंग्वेज विच यू से दिस यू शुड स्पीक। हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले पे असर पड़ता है। मैं आज आपको एक लास्ट एग्जाम्पल देके आपको फिर हम दूसरे वाले पे ले चलता हूं। मैं कहता हूं कुछ नहीं, आज आप इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने गांव चले जाइए, जस्ट गो टू योर विलेज एंड मीट योर टू ऑफ योर लंगोटिया यार, meet your childhood friends in the village. And when you meet village A, when you meet एक किसी से मिलते हैं तो वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। वो आपको कहता है, आप उससे पूछते हैं, दो मित्र हैं आपके ए और बी, जब आप उनसे मिलते हैं तो ए क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। ए कहता है, आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो आपको ए कहता है, अरे अरे हम तो एकदम ठीक है, लेकिन क्या करें, बहुत पुराना दोस्त है, अब हमारे पिताजी भी रिटायर कर गए हैं, माता जी थोड़ी बूढ़ी हो गई हैं, बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, पैर में दर्द है, और हमारा बेटा तो अब एकदम पढ़ता लिखता नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। आप तुम बताओ तुम कैसे हो। एक तो ये कहा। अब आप दूसरे मित्र के पास जाते हैं, अब आप दूसरे मित्र के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम कैसे हो। वो दूसरे मित्र का नाम है बी, पहले मित्र का नाम था ए। अब बी जैसे ही आप जाते हैं तो वो आपको कहता है, अरे रे रे कैसे हो तुम, हाँ हाँ अरे कोई बात नहीं, पिताजी तो अब बूढ़े हो गए हैं, अब तो पेंशन ही है बस कुछ, माता जी के भी पैर में चोट है तो वो अब चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में पूछती हैं, और मेरा बेटा तो पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन कुछ भी कर लेगा, आज का जमाना है कुछ भी कर लेगा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम कैसे हो। जब आप ये बात सुनते हैं, चले आते हैं, पहले ने कहा बड़ा तकलीफ है, दूसरे ने कहा ठीक ठाक है। जब दूसरी बार आप फिर गांव एक महीने के बाद जाते हैं तो आपको सिर्फ किसी एक से मिलने का मौका आता है, किसी एक से मिलने का मौका आता है। तो आप ए से मिलेंगे कि बी से मिलेंगे। आप यस, आप बी से मिलेंगे, आपने सही सोचा, क्योंकि वो पॉजिटिव बोलता है। आप ए के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हर कोई पॉजिटिव सुनना चाहता है। तो जब हर कोई पॉजिटिव सुनना चाहता है तो हम फिर पॉजिटिव क्यों ना बोले। हमारा काम है पॉजिटिव बोलना, हम फिर पॉजिटिव क्यों ना बोले, यही सोच के हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो आप ये जरूर सोच के चलिए, पॉजिटिव वर्ड हैज गॉट ह्यूज पावर। use positive language, which I always say this is mantra number 4, use positive language। और अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, और सोचेंगे तो आप महसूस भी पॉजिटिव करेंगे। आपको मैं ये कोई स्पिरिचुअलिटी के भाषण नहीं दे रहा हूं, ये आपके जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। मैं वहां अगर आपके साथ होता, आपके बीच होता, तो इतनी अच्छी कहानियां आपको बताता, इतने अच्छे कहानी और एग्जाम्पल्स बताता, जिससे आपको दिल तक छूता, और फिर कहते हाँ आपने सही कहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये मान के चलिए, मेरी बात पे थोड़ी देर विश्वास कर लीजिए, कि अगर आपने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया तो सामने वाला आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मिलना चाहेगा। वो एक बार काम नहीं करेगा, दो बार काम नहीं करेगा, वो बार बार काम करेगा। वो आपसे एक बार नहीं मिलने आएगा, दो बार नहीं मिलने आएगा, वो आपसे बार बार मिलने आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पॉजिटिव। ये रहा हमारा चौथा मंत्र, फोर्थ मंत्र। नाउ व्हाट आई गोइंग टू डू इज दिस, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट 5 mantras as I said you. Now I'm going to share with you the last mantra, the you attitude. You attitude for you people is a very common. हमने एक्सटेंशन के कोर्स में पढ़ा हुआ है एम्पैथी, हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और आप ही जैसे गुरु ने हमें पढ़ाया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कि एम्पैथी कहते हैं उसको। एम्पैथी इज, हम लोगों को किताबों में लिखा रहता था, पुटिंग योर फुट इन समवन एल्स शूज।
लेकिन मैं आपको इसको साधारण भाषा में बताता हूं, उसको समझ जाइए। बस दूसरों की भावनाओं को समझिए, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या चाहता है, बस उसको उसके दिमाग से सोचिए और फिर वैसे ही बोलिए ना, वैसे ही बिहेव कीजिए ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप किसी दुकान पे गए हैं और दुकानदार आपसे ये बात कहता है, कि आप ये पेन ले जाइए ना, इससे आपके लिखने से ना आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, और ये बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो आप कहेंगे हाँ, हमको भी तो वही चाहिए, ये सस्ता है, बहुत दिनों तक चलेगा, तकलीफ भी नहीं होगी, वो बहुत दिनों तक चलेगा, यही तो चाहिए। आप उस दुकान वाले को कहेंगे हाँ दे दो। लेकिन अगर वही दुकान वाला आपको ये बोले कि सर ये पेन ले जाइए ना, हमें इसको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, तो आप उस पेन को लेंगे क्या? सोचेंगे, सोचेंगे। इसलिए क्योंकि पहली बार में उसने अपने दिल की बात कही। और आप जब भी आप किसान के पास जाएंगे, किसान तो ये जानना चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। आप तो ये नहीं कहेंगे यार ये खाद ले लो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। वो तो किसान बोलेगा भाई आप अपना टारगेट तो पूरा करो। बट आप ये बोलो ना, ये खाद ले लो, योग करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी, वो कहेगा साहब रख दीजिए, तुरंत रख दीजिए, वो मना नहीं करेगा। बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट हिम। एंड आई एम सीइंग there are wonderful ladies and gents sitting out over here, they are the youngers. I will give how the corporate enjoys this. How does the corporate takes the benefit of you? Many of you may have used the Reynolds pen. The Reynolds pen, when they initially came, and today also it is there are the few pens, there is no rubber. But there is another pen which you will find लिखते के समय यहाँ पे rubber लगा दिया गया है. Now I will tell you this, that how the corporate uses your you attitude. How does your corporate uses? The corporate uses you attitude like this. They will make an advertisement. They will make an TV advertisement. Just listen me and remember how you might have seen that advertisement. मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको इतना मजा लगेगा और सोचेंगे। कॉर्पोरेट एक एडवर्टीजमेंट बनाता है और एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाता है? 4 साल का छोटा बच्चा। All of us are the parents now. So 4 साल का छोटा बच्चा या छोटी बच्ची एक पेन, रेनोल्ड पेन से लिख रहा है, एक रेनोल्ड पेन से लिख रहा है, और वो एक कागज पे लिख रहा है। और कागज पे क्या लिख रहा है सुनिएगा? MAM। दर्द कर रहा है। फिर वो दूसरी तरफ से लिखता है PAP। दर्द कर रहा है। He could not write mama and papa. This is what the television advertisement is showing. Then what happens that there is another advertisement comes, and then there at the same advertisement the another pen comes, and this time pen के चारों तरफ वो रबर लगा हुआ है, वो रबर लगा हुआ है रेनॉल्ड पेन की तरफ। and then what happens that he writes, the small 4-year child, she writes MAMA, mama. And then the other side he writes, at the other side of this, PAPA, papa. And he smiles. This is what is the rubber वाला पेन। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, आप इंडिविजुअली सबसे सवाल करता हूं कि इस एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आपको BA सबौर, सुहाने साहब और कोई भी आदमी आपको बोलता है कि आप गेट के बाहर चले जाइए और अगले बैच की ट्रेनिंग के लिए हमें पेन खरीद के लाना है। अगले बैच की ट्रेनिंग के लिए पेन खरीद के लाना है। बाहर जो दुकान है उसके पास दोनों तरह के पेन हैं, एक विथ रबर और दूसरा विदाउट रबर। आप कौन सा पेन खरीदेंगे? यस, सही बोला आपने, विथ रबर। आप विथ रबर खरीदेंगे, जबकि आपको मालूम है कि 4 साल का बच्चा नहीं लिखने वाला है, बड़े लोग लिखने वाले हैं। और यह भी मालूम है कि आजकल लोग कितना लिखते हैं, आजकल तो लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, लेकिन फिर भी आपने वो किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि
कॉरपोरेट ने आपके दर्द को समझा था। आपको मैं बता दूं कि जब टाटा नैनो कार लॉन्च हो रहा था तो रतन टाटा ने क्या कहा था? रतन टाटा ने यह नहीं कहा था कि मुझे प्रॉफिट होगा। रतन टाटा ने यह कहा था कि अगर आप लोग ये कार खरीदेंगे, मैं क्यों ये कार लॉन्च कर रहा हूं? ये कार इसलिए लॉन्च करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर भारतीय एक कार में ट्रेवल करे। जब भी इफ इट इज रेनिंग ही शुड नॉट गेट वेट, शी शुड नॉट गेट वेट। इफ इट इज अ विंटर सीजन she should not shiver of the cold. If it is summer season, she should not perspire and she should not be wet with the perspiration. उसे गर्मी नहीं लगे, क्योंकि मैं उसे 4 चक्के पे बिठा के कार के अंदर बिठाना चाहता हूं। और लोगों ने ताली बजाई थी। कहा था वाह क्या ये रतन टाटा है जो ये सोचता है, हर भारतीय के बारे में सोचता है कि 1,20,000 में वो कार आ जाएगी जिससे न कोई गीला होगा, न किसी को ठंड लगेगी, न किसी को गर्मी लगेगी, और सब कोई कार में घूमेगा। ऐसा लोग होना चाहिए। वो तो लोगों की बात सुनते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ यू एटीट्यूड। मैं अगर यही ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको, आपके कॉलेज को जहां से हम आए हैं, और आप ही समझ लीजिए वहां के ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं अगर उनको ये लिख के दूं कि सर आप मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाइए और आप अपने पार्टिसिपेंट को एक्सआईएम भुवनेश्वर भेजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 या 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपके पार्टिसिपेंट ऐसे हो जाएंगे कि जब वापस वहां काम करने जाएंगे तो आपके काम करने का ढंग बदल जाएगा, आपके इन्वायरमेंट, पूरा वर्किंग इन्वायरमेंट बदल जाएगा, सारे लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपके काम करने का तरीका बदलेगा। आप देखिएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। सब कोई अच्छे लिए बदल जाएगा और सब कोई आपको वाह वाह करेगा। तो आप लोग बिना हमसे पूछे कि क्या रेट होगा, आप हम कहेंगे हाँ सर आइए ना, आप ट्रेनिंग कीजिए ना, या हम आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, आप बोलिएगा। लेकिन मैं आपको उसी चिट्ठी में ये लिखूं कि अगर आप मुझे ट्रेनिंग देंगे तो एक्सआईएम रूप में, एक्सआईएम भुवनेश्वर लाखों रुपए से धनी हो जाएगा। जो तो होगा ही, क्योंकि बिना पैसे का तो होगा नहीं ट्रेनिंग। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा। वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि हमारा हर इंप्लॉय अच्छा हो जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, सब कोई अच्छा करने लगे। और मैंने जब वो कहा तो उसने हमसे दाम भी नहीं पूछा, रेट भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। एंड देन ही सिंपली सेड दैट प्लीज गिव मी ट्रेनिंग विदाउट इवन आस्किंग द रेट। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि आप मुझे ट्रेनिंग दे दीजिए, मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, तो वो बोला आप अपना फायदा अपनी जगह, हम नहीं देने वाले। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैंने वही बोला जो सामने वाला चाहता था, जो सामने वाला सुनना चाहता था, जो सामने वाला देखना चाहता था, मैंने उसको वही दिखाया। ये है यू एटीट्यूड। देखिए मित्रों, अब हम ट्रेनिंग के अंत में आ गए हैं और मुझे मालूम है कि वहां बहुत लोग आपको ट्रेनिंग के सेशन में ट्रेनिंग दिए होंगे, वहां फिजिकली आपके सामने आपके आपको आके ट्रेनिंग दिया होगा। और इसके बाद जब आप अपने घर लौटेंगे तो वहां के माहौल में यू विल फॉरगेट एवरीथिंग विच यू हैव लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, because that environment is a different than the training program. Training program is in an ideal situation where nothing, but when you go to the work, it will be an entirely different situation and you will forget. बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं ना, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा कि एक प्रोफेसर नीरज कुमार जो एक्सआईएम से आके आए थे, उनका क्लास कैसा था, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो सब भूल जाइए, सब एक ही वर्ड याद रखिएगा, एक ही फ्रेज याद रखिएगा, तो आपका पूरा क्लास याद रहेगा। और वो फ्रेज क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सिर्फ यू एटीट्यूड याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए, बाकी के 4 मंत्र आप भूल भी जाइए। एक यू एटीट्यूड तो मेरे लिए याद करेंगे, और आपको यू 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 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। नीरज कुमार यू एटीट्यूड, नीरज कुमार यू एटीट्यूड, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप सब कुछ भूल जाएंगे, यू एटीट्यूड याद रखेंगे। और अगर यू एटीट्यूड याद रखेंगे
तो देखिए क्या होगा। ये जादू है यू एटीट्यूड में, ये आपको क्यों बदल देगा और आपको लोग क्यों पसंद करना शुरू कर देंगे और आप डिफरेंट कैसे हो जाएंगे, मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप यू एटीट्यूड याद करेंगे, यू एटीट्यूड रखेंगे, तो आप दूसरों के सामने सिर्फ पॉजिटिव लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि लोग पॉजिटिव ही सुनना चाहता है। अगर आप यू एटीट्यूड याद करेंगे तो आप नेचुरल रहेंगे, कोई दिखावटी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग दिखावटी नहीं चाहते हैं। सब कोई नेचुरल देखना चाहता है, ओरिजिनल देखना चाहता है, कोई चीटर नहीं देखना चाहता है। अगर आप यू एटीट्यूड याद रखेंगे तो आप उसके सामने हमेशा कटियस रहेंगे, क्योंकि वो कट से चाहता है और आप उससे हमेशा कट से पेश करेंगे। आप अगर यू एटीट्यूड याद रखेंगे तो आपका टोन बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बताया, अगर आपने यू एटीट्यूड याद रखा और आपका टोन अच्छा रहा तो आप मत सोचिए, यू आर the different. You are different, and that is what I wanted to tell you, my dear friends. Thank you very much. That's all I wanted to say. Now you are different. Remember, sir, more than 70 minutes has passed, and you think if you apply this, you are going to be different. You are going to be different. Thank you very much. Thank you very much. Now it's open for the question. मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको देख रहा था, सबको अच्छा लगा, बड़े अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया दूर होने के बावजूद भी। अरे सुहाने सर भी हैं, अरे सर हम तो आपके सोच नहीं रहते, बहुत ऐसी कहानियां कह गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। गुड सर, एनी क्वेश्चन यू हैव? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, वंडरफुल। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जब बात करते करते। सुहाने सर, हमको चाय नहीं मिली सर, आपने सबको वहां चाय पिलवा दी, हमें को चाय नहीं भिजवाई सर। अरे वाह वाह वाह, गुड सर। नो क्वेश्चन सर। ओह गुड। सर सिर हिला रहे हैं, धीरे से किनारे पे बैठ के सर ने चश्मा लगाया और सर हिला दिया। हाँ सर, बहुत अच्छा है सर, दैट्स वेरी गुड सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। इट्स ऑलरेडी 4, so thank you very much, thank you very much. If you don't have a question, I thoroughly enjoyed. आपने देखा होगा कितना मजा लिया आपसे बात करने के लिए। एंड मुझे बस एक ही चीज का अफसोस है कि मैं आपके बीच नहीं हूं, आपके बीच होता तो मुझे और मजा आता। लेकिन जितना भी मुझे बहुत आया है। मैं शुक्रगुजार हूं सोहाने सर का कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आज सबको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबों के प्रति। धन्यवाद सर, नमस्कार, मे गॉड ब्लेस यू ऑल सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।